All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. First of all, we will see that within last lecture what we have completed. Within last lecture, we have completed with the topic 2.4, that is module, procedure and function. And within that, we have seen what is module, what is procedure. Then we have seen there are two types of procedure, that is subroutine and function. Then we have seen syntax of subroutine and function. Along with that, we have seen brief explanation of all the keywords that are used to define subroutine and function, right? And then we have also seen example. After that, we have also seen that how we can call subroutine, how we can call function, right? And if function returns the value, then how that return value is handled. These are the things which we have completed within last lecture, and by the end we have also seen advantages of procedure. And after that, we have seen one example of random number generation, within which I have demonstrated subroutine and function, that how we can define the subroutine and how we can define the function, right? And how it can be used on button click event. And along with that, we have also seen what is pass by value and what is pass by reference, because in subroutine we have passed the arguments with the help of pass by reference concept, and within function we have passed the value by using the concept that is pass by value, that is by val and by ref keyword, right? So these were the things which we have completed within last lecture. Now within this lecture we will see one another example, right? So first of all, we will see the explanation of that example, and then I will demonstrate that how we can create that example. All right. So students, I am showing one thing, right? आप मुझे बताना कि ये क्या है. See, for example, मैं इस हिसाब से गेम खेलना चाहती हूँ, right? Then we already know that it is tic-tac-toe game, right? So now what is the scenario? tic-tac-toe game के अंदर कितने players होते हैं? 2 players होते हैं, that is player 1 and player 2. नाउ एक बार प्लेयर 1 का चांस आता है, एक बार प्लेयर 1 का चांस कंप्लीट होने के बाद प्लेयर 2 का चांस आता है, अगेन प्लेयर 2 का चांस कंप्लीट होने के बाद प्लेयर 1 का चांस आता है. फॉर एग्जांपल, हम प्लेयर 1 को एक्स सिंबल असाइन करते हैं, दैट इज क्रॉस मार्क का सिंबल हम प्लेयर 1 को असाइन करते हैं, और प्लेयर 2 को हम असाइन करते हैं राउंड सिंबल, दैट इज सर्कल का सिंबल जो है वो हम प्लेयर 2 को असाइन करते हैं. मतलब प्लेयर 1 जब भी खेलेगा ये टिक-टैक-टो गेम तो उसे क्रॉस सिंबल का यूज करना पड़ेगा, और प्लेयर 2 जब भी खेलेगा ये गेम तो उसे जो सर्कल दैट इज राउंड सिंबल है उसका यूज करना पड़ेगा, राइट? ओके. नाउ फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 का ऑब्वियसली गेम स्टार्ट होगी तो प्लेयर 1 का पहले चांस आएगा, तो फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 यहाँ पे क्रॉस मार्क करता है, उसके बाद प्लेयर 2 का चांस आता है, तो फॉर एग्जांपल प्लेयर 2 यहाँ पे सर्कल बनाता है, उसके बाद फिर से प्लेयर 1 का चांस आता है, तो फॉर एग्जांपल प्लेयर 1 यहाँ पे क्रॉस मार्क करता है, उसके बाद प्लेयर 2 का चांस आता है तो मे बी वो यहाँ पे सर्कल बनाता है. तो ऑब्वियसली अब फिर से प्लेयर 1 का चांस आया तो प्लेयर 1 ने यहाँ पे सर्कल क्रॉस मार्क बनाया. अब प्लेयर 2 का चांस आया तो प्लेयर 2 ने यहाँ पे सर्कल बनाया. आफ्टर दैट अगेन प्लेयर 1 का चांस आया और उसने यहाँ पे क्रॉस मार्क बनाया. तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये पैटर्न बन गई. सो एज द पैटर्न इज क्रिएटेड, स्ट्रेट लाइन में 3 क्रॉस मार्क्स आ गए, तो विनर कौन होगा? प्लेयर 1 विल बी द विनर, राइट? बिकॉज प्लेयर 1 का कौन सा सिंबल था? दैट इज क्रॉस मार्क सिंबल था, और प्लेयर 1 ने वो एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर वो क्रॉस मार्क्स कर दिए, तो ऑब्वियसली वो विन हो गया, राइट? लाइकवाइज अगेन अगर ये गेम स्टार्ट होती है, राइट, फिर से प्लेयर 1 को हम क्रॉस मार्क असाइन करते हैं एंड प्लेयर 2 को सर्कल असाइन करते हैं, तो मे बी पॉसिबल प्लेयर 1 का चांस है तो वो यहाँ पे क्रॉस मार्क करता है, प्लेयर 2 का चांस है तो वो यहाँ पे सर्कल बनाता है, प्लेयर 1 का चांस है तो वो यहाँ पे क्रॉस मार्क करता है, प्लेयर 2 का चांस है तो वो यहाँ पे सर्कल बनाता है, अगेन प्लेयर 1 यहाँ पे क्रॉस मार्क बनाएगा, अगेन प्लेयर 2 यहाँ पे सर्कल बनाएगा, अगेन प्लेयर 1 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रॉस मार्क बनाता है, तो ये उसका हो गया, राइट? दैट इज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मैनर के अंदर उसने पैटर्न्स बना दी, तो वहां पे वो पूरी पैटर्न बन गई, राइट? और वो प्लेयर 1 विन हो गया, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वे कि हम कैसे टिक-टैक-टो गेम खेलते हैं, राइट? अब यही चीज को हमें कंप्यूटराइज मैनर के अंदर उसे बनानी है,
और उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसका यूज करके कैसे ये टिक टैक टो गेम प्ले भी कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट विल बी द लॉजिक, हम पहले लॉजिक देखते हैं कि इसका लॉजिक क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें टिक टैक टो गेम खेलने के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए, 9 बॉक्सेस चाहिए। फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, हमें टिक टैक टो गेम खेलने के लिए 9 बॉक्सेस चाहिए। Along with that, there will be 2 players, that is player 1 and player 2. Player 1 को for example हम क्रॉस सिंबल असाइन करते हैं और प्लेयर 2 को फॉर एग्जाम्पल हम सर्कल का सिंबल असाइन करते हैं, राइट। नाउ दिस इज द सिनारियो। नाउ व्हाट इज द विनिंग कंडीशन, विन कब होगा कोई भी प्लेयर। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 1 2 3 ये पैटर्न बनती है तो वो विन कहलाता है। 4 5 6 अगर ये पैटर्न बनती है तो वो विन कहलाता है। 7 8 9 ये पैटर्न बनती है तो वो विन कहलाएगा। 1 4 7 ये पैटर्न बनेगी तो वो पर्टिकुलर प्लेयर विन कहलाएगा। 2 5 8 ये पैटर्न बनेगी तो वो पर्टिकुलर प्लेयर विन कहलाएगा। 3 6 9 ये पैटर्न बनेगी तो वो पर्टिकुलर प्लेयर विन कहलाएगा। 1 5 9 दैट इज डायगोनल, तो ये पर्टिकुलर पैटर्न बनेगी तो वो पर्टिकुलर बंदा विन कहलाएगा। 3 5 7 अगर ये पैटर्न बनेगी तो वो भी मीन्स वो पर्टिकुलर प्लेयर विन कहलाएगा। एंड आफ्टर अगर 9 बॉक्सेस फिल हो जाते हैं और इसमें से कोई भी पैटर्न नहीं बनती है तो ऑब्वियसली दोनों में से कोई भी प्लेयर विनर नहीं कहलाएगा, राइट। सो दिस इज द क्राइटेरिया स्टूडेंट्स कि कब कोई प्लेयर विनर कहलाएगा और कब दोनों में से कोई भी प्लेयर विनर नहीं कहलाएगा। इन शॉर्ट अगर हमें विनिंग क्राइटेरिया चेक करना है, विनिंग कंडीशन चेक करनी है तो कितनी कंडीशन होगी। हॉरिजॉन्टल 3 कंडीशंस है दैट इज 1 2 3, वर्टिकल दूसरी 3 कंडीशंस है दैट इज 4 5 6, डायगोनल कंडीशन है दैट इज 7 एंड 8। मतलब हमें टोटल 8 क्राइटेरिया चेक करने पड़ेंगे, 8 कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी कि जिसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि कौन सा प्लेयर विन हुआ है या फिर दोनों में से कोई प्लेयर विन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, राइट। हम ये पर्टिकुलर 8 कंडीशंस के ऊपर कह सकते हैं, राइट। नाउ अनदर सिनारियो, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बना दिए, राइट। प्लेयर 1 का चांस है एंड यहाँ पे प्लेयर 2 है। प्लेयर 1 को मैंने क्रॉस मार्क असाइन किया और प्लेयर 2 को सर्कल असाइन किया। अब गेम स्टार्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेयर 1 ने एक्स रखा, यहाँ पे प्लेयर 2 ने सर्कल रखा। प्लेयर 1 ने फिर से यहाँ पे एक्स रखा, प्लेयर 2 ने यहाँ पे सर्कल रखा, प्लेयर 1 ने यहाँ पे एक्स रखा। प्लेयर 1 ने एक्स रखा लेकिन चांस अब किसका होगा, अगर प्लेयर 1 विन नहीं होता तो चांस किसका होता, प्लेयर 2 का होता। इट मीन्स कि अगर चांस प्लेयर 2 का है और यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनती है तो वहां पे विनर कौन कहलाएगा, प्लेयर 1। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनती है और चांस होता है प्लेयर 2 का तो वहां पे विनर कहलाएगा प्लेयर 1, बिकॉज पैटर्न पहले बन गई थी उसके बाद प्लेयर 2 का चांस आया था, राइट। लाइकवाइज फॉर एग्जाम्पल फिर से गेम स्टार्ट होती है, राइट। यहाँ पे ये 9 बॉक्सेस है। प्लेयर 1 को मैंने एक्स असाइन किया दैट इज क्रॉस मार्क असाइन किया, प्लेयर 2 को मैंने सर्कल असाइन किया। प्लेयर 1 ने स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने क्रॉस मार्क रखा, प्लेयर 2 ने यहाँ पे सर्कल रखा। प्लेयर 1 ने फिर से यहाँ पे क्रॉस मार्क रखा, प्लेयर 2 ने सर्कल रखा। प्लेयर 1 ने यहाँ पे क्रॉस मार्क रखा और प्लेयर 2 ने यहाँ पे सर्कल रखा। नाउ द सिनारियो इज दैट यहाँ पे पैटर्न बनी, किसकी पैटर्न बनी, प्लेयर 2 ने पैटर्न बनाई। तो अब प्लेयर 2 का तो चांस हो गया है, चांस किसका होगा, प्लेयर 1 का। लेकिन चांस अभी है प्लेयर 1 का लेकिन उससे पहले पैटर्न बन गई है तो ऑब्वियसली विनर कौन कहलाएगा, प्लेयर 2 विल बी द विनर,
राइट। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे पैटर्न बनी और चांस आया प्लेयर 1 का, लेकिन प्लेयर 1 का चांस आने से पहले ही पैटर्न बन गई है, तो विनर कौन कहलाएगा? प्लेयर 2 विल बी द विनर, राइट। सो स्टूडेंट्स, कैसे हम विनर डिसाइड कर सकते हैं? कितनी कंडीशंस होगी कि जो हमें चेक करनी पड़ेगी ये तय करने के लिए कि कोई भी प्लेयर विनर है कि नहीं है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी, राइट। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम ये एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि हमारे पास 9 बॉक्सेस होने चाहिए कि जिसके अंदर प्लेयर खुद का सिंबल रखेंगे। इन शॉर्ट, हमें वहां पे कोई ऐसा कंट्रोल चाहिए कि जिसका यूज करके हम वो बॉक्सेस के हिसाब से या फिर उसके ऊपर कोई लॉजिक लिख के ये तय कर सके कि कौन सा बंदा विनर है, कौन से बंदे ने कहाँ पे क्लिक किया है। एंड फॉर दैट पर्पस हमें पता है कि हमारे पास बटन कंट्रोल है। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, फॉर दैट पर्पस हमें पता है कि हमारे पास बटन कंट्रोल है, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे 9 बटन कंट्रोल्स प्लेस करेंगे। कितने बटन कंट्रोल्स प्लेस करेंगे? 9 बटन कंट्रोल प्लेस करेंगे, राइट। सो 9 बटन कंट्रोल्स हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, राइट। और 9 बटन कंट्रोल्स हम सीक्वेंस में प्लेस करेंगे, right? So this will be button 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। 9 बटन कंट्रोल्स है और हमें पता है कि बटन कंट्रोल की क्लिक इवेंट हमें मिलती है, और वो क्लिक इवेंट के ऊपर हम चेक कर सकते हैं कि यूजर ने कौन से बटन के ऊपर क्लिक किया है और वो बटन के ऊपर कौन सा टेक्स्ट आया है, दैट इज क्रॉस सिंबल आया है या फिर सर्कल आया है। हम उसके ऊपर से तय कर सकते हैं कि कौन से प्लेयर का चांस है, कौन सा प्लेयर विन हुआ है, और वो सारी चीजें हम ये बटन कंट्रोल की क्लिक इवेंट के ऊपर डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। ओके, सो इसीलिए हम सीक्वेंस में 9 बटन कंट्रोल्स रखेंगे फॉर दिस 9 बॉक्सेस के जो हमें यहाँ पे इस हिसाब से टिक टैक टो गेम खेलने के लिए चाहिए, राइट। एंड आफ्टर दैट हम वहां पे प्लेयर को इंडिविजुअली वो पर्टिकुलर सिंबल असाइन कर देंगे कि जिसका यूज करके प्लेयर वहां पे ये टिक टैक टो गेम खेल सकता है, राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, फॉर दैट पर्पस हम क्या करेंगे? पहले तो विजुअल स्टूडियो के अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, राइट। सो यहाँ पे फाइल न्यू प्रोजेक्ट, राइट। फाइल न्यू प्रोजेक्ट किया तो ऑब्वियसली मुझे वहां पे एक डायलॉग बॉक्स मिला। डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे लेफ्ट पैन में से विजुअल बेसिक के अंदर मैं सिलेक्ट करूंगी विंडोज, मिडल पैन में से मैं सिलेक्ट करूंगी विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नेम दूंगी, दैट इज PROJ टिक टैक टो EX, राइट। अगेन आई रिपीट, मैंने प्रोजेक्ट का नेम दिया PROJ टिक टैक टो EX। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि मुझे जो लोकेशन के ऊपर सेव करना है वो लोकेशन के ऊपर मतलब वो लोकेशन सेट है कि नहीं है। अगर है, वेल एंड गुड। नहीं है तो आप ब्राउज करके भी आप वो लोकेशन को सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे वो लोकेशन सेट है तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं करूंगी, राइट। एंड आई विल क्लिक ऑन ओके बटन, राइट। जैसे ही मैंने ओके बटन के ऊपर क्लिक किया उसने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और बाय डिफॉल्ट वो मुझे एक फॉर्म देगा। नाउ स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप स्टेप्स नोट करते जाना, राइट। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म है। बाय डिफॉल्ट जो हम हर बार वो जो प्रॉपर्टी सेट करते हैं वो यहाँ पे हम सेट कर देंगे। सो प्रॉपर्टी विंडो में हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे, उससे पहले हम फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी विल सेट इज फॉन्ट प्रॉपर्टी। उसके अंदर हम उसकी साइज फॉर एग्जांपल कर देते हैं 16, राइट। फॉन्ट साइज हमने बढ़ा दी 16। आफ्टर दैट अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के हम सेट करेंगे, दैट इज स्टार्ट पोजीशन प्रॉपर्टी। स्टार्ट पोजीशन प्रॉपर्टी वी विल सेट इट टू सेंटर स्क्रीन, मतलब जब भी ये फॉर्म एग्जीक्यूट होगा स्क्रीन के मिडल में हमें वो डिस्प्ले होगा, राइट। आफ्टर दैट फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म 1 है हम उसके अंदर लिखेंगे फॉर एग्जांपल टिक टैक टो, राइट। जो हमारी गेम का नेम है दैट इज टिक टैक टो गेम, हमने यहाँ पे वो लिख लिया। तो आप यहाँ पे देखोगे फॉर्म के टाइटल बार के अंदर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज टिक टैक टो गेम, राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज जो हम हर बार फॉर्म की सेट करते हैं वो हमने यहाँ पे सेट कर दी।
अब हम एक काम करते हैं कि इसके ऊपर कंट्रोल प्लेस करते हैं और उसके हिसाब से हम उसके ऊपर कोडिंग भी करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग, मुझे यहाँ पे यूजर को ये डिस्प्ले करना है कि कौन से प्लेयर को कौन सा सिंबल यूज करना है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो मैं वहां पे लेबल कंट्रोल का यूज करूंगी। तो मैंने लेबल कंट्रोल फॉर्म के ऊपर प्लेस किया, राइट। अब प्रॉपर्टी विंडो में जाके मैं पहले तो उसकी ऑटो साइज प्रॉपर्टी फॉल्स सेट करूंगी, राइट। सो लेबल कंट्रोल की मैंने ऑटो साइज प्रॉपर्टी फॉल्स सेट कर दी। अनदर प्रॉपर्टी जो मैं सेट करूंगी दैट इज उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं सेट करूंगी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं लिखूंगी दैट इज प्लेयर 1, उसको मैं असाइन करती हूँ क्रॉस मार्क का सिंबल, एंड प्लेयर 2 उसको मैं असाइन करती हूँ सर्कल का सिंबल, राइट। सो ये दोनों चीज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। एंड आफ्टर दैट मुझे ये सेट करना है कि ये लेबल टॉप में सेंटर में डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी सेट करूंगी जो बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट है, उसे मैं सेट कर दूंगी टॉप सेंटर, राइट। एंड आफ्टर दैट मैं लेबल कंट्रोल की डॉक प्रॉपर्टी सेट करूंगी दैट इज टॉप। सी, मैंने जैसे लेबल कंट्रोल की डॉक प्रॉपर्टी सेट की टॉप, तो वो लेबल जो यहाँ पे कॉर्नर में था वो अब मिडल में आ गया। मतलब पूरे टॉप हमारा जो फॉर्म की जितनी विड्थ है उसके हिसाब से वो हो गया। और उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले कर रहा है कि प्लेयर 1 को मैंने क्रॉस मार्क का सिंबल असाइन किया है एंड प्लेयर 2 को सर्कल का सिंबल मैंने असाइन किया है, राइट। दैट इज यहाँ पे मुझे क्रॉस मार्क का सिंबल यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्स यूज किया है, राइट। और जो सर्कल का सिंबल है उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे ओ यूज किया है। अगेन आई रिपीट, प्लेयर 1 के जो क्रॉस मार्क का सिंबल है उसके रिलेटेड मैंने एक्स सिंबल यूज किया है, राइट। एंड प्लेयर 2 के लिए मैंने ओ सिंबल का यूज किया है दैट इज कैपिटल एक्स एंड कैपिटल ओ। ओके, अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया था कि मुझे यहाँ पे 9 बॉक्सेस चाहिए और वो 9 बॉक्सेस के लिए मुझे 9 बटन कंट्रोल्स का यूज करना पड़ेगा। एंड वो सारे बटन कंट्रोल्स हमें सीक्वेंस में रखने हैं। अगेन आई रिपीट, वो सारे बटन कंट्रोल्स हमें सीक्वेंस में रखने हैं लाइक दिस वे। जैसे हमने यहाँ पे नंबरिंग किया है दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, राइट। उस हिसाब से हमें यहाँ पे रखना है। तो पहला बटन कंट्रोल हम प्लेस करते हैं, सी इट इज ओवर हियर। हम क्या करेंगे, फर्स्ट बटन की प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। फर्स्ट बटन की प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए पहले तो हम वो बटन कंट्रोल को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, राइट, ताकि हम अच्छी तरह से हमारी टिक टैक टो गेम बना सके, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे इसमें से कोई भी बटन कंट्रोल्स के नेम चेंज नहीं करने हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि बटन कंट्रोल सीक्वेंस में होने चाहिए, दैट इज 1 to 9 सीक्वेंस में होने चाहिए। बिकॉज हमने यहाँ पे एक वो जो कंडीशन देखी थी, राइट, इट इज ओवर हियर। ये जो 8 कंडीशंस है वो ये बटन के नंबर पर ही हम चेक करेंगे, बिकॉज हम यही सीक्वेंस में नंबर प्लेस करेंगे तो हम अच्छी तरह से यहाँ से कंडीशन चेक कर सके, राइट। ओके, सो बटन 1 मैंने यहाँ पे रखा है। अब मुझे उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं चाहिए, बिकॉज बाय डिफॉल्ट सारे बॉक्सेस एम्प्टी होने चाहिए। तो बटन कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं एम्प्टी कर दूंगी, राइट। अगेन आई रिपीट, बटन कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने एम्प्टी कर दी। ओके, अब मैं क्या करूंगी, वही बटन कंट्रोल को सिलेक्ट करूंगी और उसको पेस्ट कॉपी करके पेस्ट करूंगी। अगेन आई रिपीट, वो बटन कंट्रोल को कॉपी करके मैं पेस्ट करूंगी। सी, जैसे मैंने वो जो ऑलरेडी बटन कंट्रोल था उसको कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, तो सेम वैसा ही दूसरा बटन कंट्रोल मुझे मिला कि जिसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी है, उसकी जो साइज थी वो भी जो फर्स्ट बटन कंट्रोल थी उसके हिसाब से मुझे मिली। सो अगर आप ये फर्स्ट बटन कंट्रोल देखोगे तो प्रॉपर्टी विंडो में देखो उसकी नेम प्रॉपर्टी है बटन 1। ये सेकेंड बटन कंट्रोल देखोगे तो देखो यहाँ प्रॉपर्टी विंडो में उसकी नेम प्रॉपर्टी है बटन 2। लाइकवाइज अब मैं फिर से बटन कंट्रोल को पेस्ट करती हूँ सी। अब उसकी अगर हम नेम प्रॉपर्टी देखेंगे देन इट इज बटन 3, राइट। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा फॉर्म मुझे नहीं चाहिए बिकॉज मेरे 3 बटन्स इतने में ही आ गए हैं, राइट। तो मैं फॉर्म को अच्छी तरह से मैं रिसाइज कर दूंगी, राइट। अब मेरे पास 3 बटन कंट्रोल से नेम प्रॉपर्टी आप चेक कर लेना प्रॉपर्टी विंडो में, दैट इज बटन 1, इट इज ओवर हियर, राइट। सी इट इज बटन 1, राइट, बटन 2 एंड बटन 3। सो ये 3 बटन्स मैंने यहाँ पे प्लेस किए। अब मैं दूसरा बटन पेस्ट करती हूँ, इट विल बी बटन 4,
राइट। प्रॉपर्टी विंडो में उसकी नेम प्रॉपर्टी देखते जाना, सी इट इज बटन 4। नेक्स्ट बटन कंट्रोल में पेस्ट करती हूँ, सी प्रॉपर्टी विंडो में उसकी प्रॉपर्टी आ गई बटन 5, नेम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बटन कंट्रोल दैट इज बटन 6, सी नेम प्रॉपर्टी इज बटन 6। नेक्स्ट बटन कंट्रोल बटन 7, नेम प्रॉपर्टी इज बटन 7। नेक्स्ट बटन कंट्रोल दैट इज बटन 8, राइट। नेक्स्ट बटन कंट्रोल मैंने यहाँ पे प्लेस किया, राइट, एंड उसकी नेम प्रॉपर्टी है बटन 8। एंड लास्ट बटन कंट्रोल में पेस्ट करूंगी और उसकी नेम प्रॉपर्टी आप प्रॉपर्टी विंडो में देख सकते हो, दैट इज बटन 9, राइट। सो जैसे मुझे यहाँ पे 9 बॉक्सेस चाहिए थे मेरी टिक टैक टो गेम के लिए, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे बटन कंट्रोल प्लेस कर दिए। एंड अलोंग विद दैट मैंने यहाँ पे लेबल कंट्रोल भी प्लेस कर दिया कि जिसके अंदर मैंने स्पेसिफाई किया कि प्लेयर 1 के लिए क्रॉस मार्क का सिंबल यूज करूंगी और प्लेयर 2 के लिए ओ का सिंबल यूज करूंगी, दैट इज सर्कल, राइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो हमने यहाँ पे 9 बटन कंट्रोल्स प्लेस कर दिए कि जो हम वो 9 बॉक्सेस के लिए यूज करेंगे हमारी टिक टैक टो गेम के लिए। अब हमें हमें ये भी डिस्प्ले करना है कि अभी कौन से प्लेयर का चांस है। मतलब अगर प्लेयर 1 का चांस है तो मैं यहाँ पे फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करूंगी प्लेयर 1, और अगर प्लेयर 2 का चांस है तो मैं फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करूंगी प्लेयर 2, राइट, ताकि प्लेयर को पता चले कि अभी कौन से प्लेयर का चांस है और उस हिसाब से वो वहां पे प्ले कर सकते हैं, ये टिक टैक टो गेम वो वहां पे प्ले कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, एंड वी नो कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो हम वहां पे लेबल कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। तो टूल बॉक्स में से हम लेबल कंट्रोल प्लेस करेंगे, सी इट इज ओवर हियर, राइट। यहाँ पे हम सेंटर में प्लेस कर देंगे ताकि पता चले कि कौन से प्लेयर का चांस है। अब लेबल कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स अगेन आई रिपीट, लेबल कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी में रखती हूँ फॉर एग्जांपल LBL P नेम, बिकॉज मैं लॉजिक में ये लेबल कंट्रोल का यूज करूंगी ये जानने के लिए कि कौन से प्लेयर का चांस है, राइट। सो लेबल कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी मैंने सेट की LBL P नेम, एंड आफ्टर दैट मैं उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी कर दूंगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब ये फॉर्म रन होता है तो यहाँ पे मैं लॉजिक से सेट करूंगी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, राइट। तो मैं उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को अभी एम्प्टी कर देती हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो यहाँ पे वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी हो गई, मतलब लेबल आपको उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, राइट। ओके, लेकिन यहाँ पे लेबल होगा, राइट। आपको ये एज्यूम नहीं करना है कि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है तो लेबल चला गया। लास्ट लैब में मैंने देखा था कि स्टूडेंट्स ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। नो, लेबल है और उसके अंदर सिर्फ हमने उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी कर दी है, इसीलिए वो वहां पे कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं कर रहा है, राइट। ओके, हम फॉर्म को थोड़ा रिसाइज कर देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे टिक टैक टो गेम के लिए फॉर्म डिजाइन कर दिया है, राइट, कि जिसके ऊपर पहले तो हमने लेबल के अंदर यूजर को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की कि प्लेयर 1 के लिए क्रॉस मार्क यूज होगा और प्लेयर 2 के लिए सर्कल का सिंबल यूज होगा। उसके बाद हमने 9 बटन कंट्रोल्स रखे विच मस्ट बी इन सीक्वेंस, बिकॉज हमें कंडीशन चेक करने के लिए वो बटन सीक्वेंस में चाहिए। एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एक बटन कंट्रोल भी लेबल कंट्रोल भी प्लेस किया है कि जिसके अंदर हम यूजर को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे कि अभी कौन से प्लेयर का चांस है, राइट। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, अब हमें कौन कौन सी चीजें करनी है वो पहले देखते हैं। पहले तो हमें बाय डिफॉल्ट जब ये फॉर्म एग्जीक्यूट होगा तो पहले प्लेयर 1 का चांस होगा, तो ये लेबल के अंदर दैट इज LBL P नेम का लेबल है, उसके अंदर हमें प्लेयर 1 डिस्प्ले करना है, दैट इज द फर्स्ट टास्क। सेकंड टास्क, हमें विनर चेक करना है कि कौन सा प्लेयर विनर है। थर्ड टास्क, अगर कोई भी प्लेयर विन नहीं होता है और उसे फिर से ये गेम प्ले करनी है तो हमें ये सारे कंट्रोल्स को फिर से इसी हिसाब से डिस्प्ले करना पड़ेगा, दैट इज उसकी सारी प्रॉपर्टीज को बाय डिफॉल्ट जो थी वो रिसेट करनी पड़ेगी, राइट। फोर्थ टास्क, हमें ये तय करना पड़ेगा, ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन से बटन के ऊपर प्लेयर ने क्लिक किया है,
बिकॉज जो बटन के ऊपर प्लेयर क्लिक करेगा वो पर्टिकुलर बटन के ऊपर हमें क्रॉस मार्क डिस्प्ले करना है अगर प्लेयर 1 का चांस है तो, और सर्कल का सिंबल डिस्प्ले करना है अगर प्लेयर 2 का चांस है तो हमें ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन से बटन के ऊपर यूजर ने क्लिक किया है, और जिस यूजर ने क्लिक किया है उस हिसाब से हमें वहां पे सिंबल डिस्प्ले करना पड़ेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क के जो हमें ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर करने हैं। ओके, सो फर्स्ट टास्क हमें लेबल में डिस्प्ले करना है कि अभी प्लेयर 1 का चांस है, ये फॉर्म एग्जीक्यूट होगा तो हमें यहाँ पे वो डिस्प्ले करना है। तो कौन सी इवेंट पे डिस्प्ले करेंगे? फॉर्म की लोड इवेंट के ऊपर हम वो डिस्प्ले करेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है, कोई फॉर्म डिस्प्ले होता है, और डिस्प्ले होने के साथ साथ अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन यूजर को डिस्प्ले करनी है या फिर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो आपको फॉर्म की लोड इवेंट का यूज करना पड़ेगा, विच इज द डिफॉल्ट इवेंट ऑफ द फॉर्म। ये हमने ऑलरेडी देखा था। सो लाइकवाइज हम अभी फॉर्म की लोड इवेंट का यूज करेंगे, और फॉर्म की लोड इवेंट इज द डिफॉल्ट इवेंट। सो वो हमें कैसे मिलेगी? फॉर्म के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्म की लोड इवेंट ओपन होगी। स्टूडेंट रिमेंबर, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, कोई भी कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक नहीं करना है, फॉर्म के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। सो देखिए, मैंने यहाँ पे फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे फॉर्म की लोड इवेंट मिली, राइट, इट इज ओवर हियर। ये जो बाय डिफॉल्ट पहली इवेंट है उसे हम निकाल देते हैं। सी फॉर्म 1 डॉट लोड, फॉर्म 1 अंडरस्कोर लोड। क्यों यहाँ पे फॉर्म 1 अंडरस्कोर लोड दिखा रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट हमें फॉर्म मिला था दैट इज फॉर्म 1, वही यूज किया है, राइट। हमने सिर्फ उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज की थी, दैट इज टिक टैक टो गेम। हमने उसकी नेम प्रॉपर्टी चेंज नहीं की थी, इसीलिए हमें यहाँ पे फॉर्म 1 अंडरस्कोर लोड इवेंट मिल रही है, राइट। ओके, अब हम करते हैं, हमें डिस्प्ले करना है कि कौन से प्लेयर का भी चांस है, और वो हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेबल जो हमने यहाँ पे रखा है उसके अंदर डिस्प्ले करना है। तो हमने उसका नेम रखा था दैट इज LBL P नेम, दैट वाज द नेम ऑफ अवर लेबल। उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे बिकॉज हमें उसके अंदर टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, और उसके अंदर पहले तो ऑब्वियसली प्लेयर 1 का चांस होगा तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे प्लेयर 1। मतलब जब भी ये फॉर्म लोड होगा, डिस्प्ले होगा, तो हम वहां पे प्लेयर 1 ऐसा लिखा हुआ डिस्प्ले करेंगे, बिकॉज पहला चांस किसका होगा? प्लेयर 1 का, राइट। ओके, सो ये फर्स्ट टास्क हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। नाउ सेकंड टास्क, हमें क्या करना है कि अगर कोई भी प्लेयर विन नहीं होता है, या फिर कोई प्लेयर विन होता है लेकिन उन्हें फिर से ये गेम प्ले करनी है, तो हमें ये सारे कंट्रोल्स उसके जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है उसके हिसाब से रिसेट करने पड़ेंगे। कैसे कैसे? ये पर्टिकुलर लेबल है दैट इज प्लेयर नेम वाला लेबल, उसके अंदर हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा प्लेयर 1, और जो भी बटन्स के ऊपर यूजर ने क्लिक किया होगा तो ऑब्वियसली वहां पे आइदर क्रॉस मार्क का सिंबल होगा या फिर सर्कल का सिंबल होगा। तो सारे बटन्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी हमें एम्प्टी करना पड़ेगा, मतलब हमें उसके डिफॉल्ट सेटिंग्स जो हमने रखे हैं उस हिसाब से उसे सेट करना है, राइट। सो उसके लिए हम एक सब रूटीन बनाएंगे। अगेन आई रिपीट, ये जो कंट्रोल्स को डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से सेट करने हैं दैट इज सेकंड टास्क। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक सब रूटीन बनाएंगे। सब रूटीन के अंदर हम वो सारे कंट्रोल्स को डिफॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। सो इसीलिए फॉर एग्जांपल मैं सब रूटीन का नेम दूंगी दैट इज क्लियर कंट्रोल्स, राइट। और आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि अगर मुझे कोई सब रूटीन बनाना है तो मुझे वहां पे सब कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा सब क्लियर कंट्रोल, क्लियर कंट्रोल्स इज द यूजर डिफाइंड नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सब रूटीन। ओके, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? पहले तो मुझे वहां पे प्लेयर 1 का चांस होगा, बिकॉज अगर गेम फिर से स्टार्ट होती है तो फिर से प्लेयर 1 का चांस आएगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा दैट इज LBL P name डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोटेशन में मैं यूजर को डिस्प्ले कर दूंगी कि प्लेयर 1 का अभी चांस आएगा, बिकॉज आप लोग ने गेम फिर से स्टार्ट की है।
ओके उसके बाद ये जो 9 बटन कंट्रोल्स हमने रखे उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मुझे एम्प्टी करना पड़ेगा बिकॉज ये गेम फिर से स्टार्ट हो रही है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज बटन 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी डबल कोटेशन, मतलब बटन 1 दैट इज ओवर हियर, ये बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी हो गई, राइट। लाइकवाइज मुझे सारे बटन्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एम्प्टी सेट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी बटन 2, after that I will write it as button 3, right? After that I will write it as button 4, after that I will write it as button 5, then it is button 6, right? After that it is button 7, then it is button 8, right? And last button that is button 9. मैंने 9 बटन्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एम्प्टी सेट कर दिया। इसका मीनिंग ये होगा कि ये सारे बटन्स ऐसे ही ब्लैंक हमें डिस्प्ले करके वो दे देगा, लेकिन ये हमने लिखा है एक सब रूटीन के अंदर। तो जहां पे भी हमें ये डिफॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से सारे कंट्रोल्स को एडजस्ट करना है तो हमें वहां पे ये सब रूटीन को कॉल करना पड़ेगा, राइट। ओके सो ये हमारा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो गया। ओके अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि कौन से बटन के ऊपर यूजर ने क्लिक किया है। अगेन आई रिपीट, हमें ये चेक करना है कि कौन से बटन के ऊपर यूजर ने क्लिक किया है। लेकिन जब भी कोई यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेगा और वो विन होता है तो हमें वो विनिंग कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, राइट। सो एक काम करते हैं, हम विनिंग कंडीशन चेक करने के लिए हम दूसरा सब रूटीन ही बना देते हैं, राइट, ताकि हम वो सब रूटीन को कॉल करके ये चेक कर सके कि प्लेयर विन हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। ओके सो एक हम दूसरा सब रूटीन बनाते हैं ये चेक करने के लिए कि विन हुआ है कोई प्लेयर या फिर नहीं। सो हम ऑब्वियसली वो सब रूटीन का नेम रखेंगे दैट इज चेक विनर, राइट। तो मैंने सब रूटीन का नेम यहाँ पे रख दिया चेक विनर। ओके और ऑब्वियसली एज इट इज सब रूटीन तो मैं यहाँ पे सब कीवर्ड का यूज करूंगी। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हमें यहाँ पे 8 डिफरेंट कंडीशंस चेक करनी है। अगर ये 8 कंडीशंस में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसका मतलब कोई एक प्लेयर विनर है। अगेन आई रिपीट, हमें यहाँ पे 8 कंडीशंस चेक करनी है दैट इज 3 हॉरिजॉन्टल, राइट, 3 वर्टिकल एंड 2 डायगोनल, राइट। वो 3 कंडीशंस हमें यहाँ 8 कंडीशंस हमें यहाँ पे चेक करनी है, राइट। सो वो 8 कंडीशंस के लिए हमें यहाँ पे इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, राइट। सो मैं एक कंडीशन लिखती हूँ उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी कंडीशंस किस हिसाब से आएगी, राइट। सो हमें क्या चेक करना है, पहली चीज हमें चेक करनी है कि फॉर एग्जाम्पल हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, राइट, कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये टिक टैक टो गेम कंसीडर करते हैं तो हमें पहला कंडीशन चेक करना है कि 1 2 3, राइट। ये 3 में से कोई मतलब ये जो 3 बॉक्सेस होंगे उसके अंदर 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी इक्वल टू 2 टेक्स्ट प्रॉपर्टी और 2 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी इक्वल टू 3 टेक्स्ट प्रॉपर्टी। मतलब ये 3 बटन्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, मतलब आइदर क्रॉस मार्क तीनों में होना चाहिए या फिर आइदर सर्कल तीनों में होना चाहिए, राइट। सो ये तो हमें यहाँ पे चेक करना ही है। दूसरा हमें ये चेक करना है कि बटन 1, बटन 2 और बटन 3 एम्प्टी नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर तीनों बटन एम्प्टी है तो भी तीनों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम ही होगी, राइट। तो हमें एक ही इफ कंडीशन के अंदर ये सारी चीजें चेक करनी है। कौन कौन सी चीजें चेक करनी है कि अगर हम ये फर्स्ट रो के लिए विनिंग क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि बटन 1, बटन 2 एंड बटन 3 वो तीनों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज कि बटन 1, बटन 2 और बटन 3 तीनों में आइदर तीनों बटन के ऊपर एक्स सिंबल दैट इज क्रॉस मार्क का सिंबल होना चाहिए या फिर तीनों बटन के ऊपर सर्कल का सिंबल होना चाहिए, राइट। मतलब तीनों बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, आइदर एक्स और 0, और यहाँ पे हमने ऑब्वियसली लॉजिक के अंदर लिखा है ओ, राइट। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे चेक करना है।
सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ पहली कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के अंदर लिखेंगे बटन 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू बटन 2 डॉट टेक्स्ट एंड, राइट, बटन 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू बटन 3, राइट, हम यहाँ पे ले लेते हैं बटन 3 डॉट टेक्स्ट, राइट, मतलब हमने ये चेक कर लिया कि बटन 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू बटन 2 टेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड बटन 2 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इक्विवेलेंट टू बटन 3 टेक्स्ट प्रॉपर्टी। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि तीनों बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड button 1 dot text is not equal to empty and button 2 dot text is again not equal to empty and button 3 dot text is not equal to empty, right? सो हमने यहाँ पे ये कंडीशन लिख दी। सी, ये हमारी फर्स्ट थिंग जो हमें चेक करनी है, दैट इज बटन 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू बटन 2 टेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड बटन 2 टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू बटन 3 टेक्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब तीनों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। अलोंग विद दैट हमने ये भी चेक किया कि तीनों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एम्प्टी होगी तो भी सेम होगी, तो इसीलिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि तीनों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, राइट? ओके, नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे और, बिकॉज हमें ऐसी कितनी कंडीशंस चेक करनी है, 8 कंडीशंस चेक करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे और, राइट? और लिखने के बाद दूसरी कंडीशंस हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम ऐसे ही लिखते रहे तो ये तो पूरा कितना स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा, राइट? सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम अंडरस्कोर यूज करेंगे विच वाज लाइन ब्रेकिंग कैरेक्टर। अगर आपको याद हो तो हमने अंडरस्कोर सिंबल पढ़ा था विच वाज स्टेटमेंट ब्रेकिंग या फिर लाइन ब्रेकिंग कैरेक्टर, तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर करके एंटर करेंगे। सो हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन सेम स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और, बिकॉज हमें दूसरी कंडीशन यूज करनी है, राइट? सो अगेन यहाँ पे मैं सेकंड कंडीशन चेक करूंगी, अंडरस्कोर एंटर, फिर से और थर्ड कंडीशन में चेक करूंगी, अंडरस्कोर एंटर, फिर से और फोर्थ कंडीशन में चेक करूंगी, अंडरस्कोर एंटर, फिर से और फिफ्थ कंडीशन अंडरस्कोर एंटर, सिक्स्थ कंडीशन अंडरस्कोर एंटर, seventh condition underscore enter and last one is eighth condition and then, right? उसके बाद कोई दूसरी कंडीशन नहीं होगी तो मुझे ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, राइट? ओके, अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है, राइट? सो हम क्या करते हैं, हम उसे सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, बिकॉज हमें सिर्फ वहां पे बटन के नंबर्स चेंज करने हैं। सो सेकंड कंडीशन में यहाँ पे लिखूंगी, सेकंड कंडीशन में किसके लिए चेक करूंगी, फॉर दिस 4, 5 एंड 6 उसके रिलेटेड सेम मैं चेक करूंगी, तो मुझे यहाँ पे बटन के नेम्स क्या लिखने पड़ेंगे, 4 के साथ 5 सेम होना चाहिए और 5 के साथ कौन सा सेम होना चाहिए, 6 सेम होना चाहिए, मतलब 4 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 5 टेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 6 बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड तीनों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। सो मैं वो यहाँ पे सेट कर देती हूँ कि तीनों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं है, राइट? सो ये कंडीशन भी हमने चेक कर ली। नाउ थर्ड कंडीशन, उसके अंदर हमें क्या करना है, ये 7, 8 एंड 9 उसके लिए कंडीशन चेक करनी है, तो हम यहाँ पे उस हिसाब से चेंजेस करेंगे, राइट? उस हिसाब से हम चेंजेस करेंगे तो हमें वहां पे बटन के नेम्स चेंज करने पड़ेंगे, दैट इज हमें यहाँ पे लिखने पड़ेगा 7 इज इक्वल टू 8 एंड 8 इज इक्वल टू 9 एंड तीनों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, दैट इज 7, आफ्टर दैट इट इज 8, राइट, एंड आफ्टर दैट इट इज 9, वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए,
राइट। सो 3 कंडीशंस चेक कर ली। अब फोर्थ कंडीशन के अंदर हमें क्या चेक करना है, 1, 4 और 7। अब हम वर्टिकल के ऊपर जाएंगे, दैट इज 1, 4, 7 हमें चेक करना है। तो बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें उस हिसाब से सेट करनी पड़ेगी, दैट इज 1, 4 एंड 7। 1 तो है ही यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज इक्वल टू 7। और तीनों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 तो है ही, 4 एंड 7, ये भी चेक हो गया। अब फिफ्थ कंडीशन हमें चेक करनी है किसके रिलेटेड, कंडीशन हमें चेक करनी है 2, 5 और 8 के रिलेटेड हमें फिफ्थ कंडीशन चेक करनी है। तो उस हिसाब से हम बटन्स के नेम चेंज करते हैं, दैट इज 2 must be equal to 5 and 5 must be equal to 8. सो हमने यहाँ पे वो चेंज कर लिया एंड अलोंग विद दैट तीनों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, उसके बाद आएगा 5 एंड बाय द एंड 8, राइट। सो ये कंडीशन भी चेक हो गई। अब सिक्स्थ कंडीशन हम किसके लिए चेक करेंगे, 3, 6 एंड 9, उसके लिए हम चेक करेंगे। तो उसके हिसाब से हम बटन कंट्रोल के नेम चेंज करेंगे, दैट इज 3 शुड बी equal to 6, right? 6 should be equal to 9 और तीनों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3, यहाँ पे लिखती हूँ 6 एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ 9, राइट। सो 6 कंडीशंस मैंने यहाँ पे चेक कर ली। अब सेवेंथ कंडीशन किसके लिए होगी, 1 डायगोनल कंडीशन होगी, दैट इज 1, 5 एंड 9। तो हम वो यहाँ पे लिख लेंगे, दैट इज ओवर हियर। फिर से बटन के नेम्स चेंज कर लेते हैं, 1 तो है ही, 5 एंड 1 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 9, राइट। लाइकवाइज हम तीनों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं, दैट इज 1, 5 एंड 9, ये भी हो गया, राइट। नाउ द लास्ट कंडीशन जो डायगोनल है, दैट इज दिस वन, 3, 5 एंड 7, उसके लिए चेक करना है, तो हम वो भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, दैट इज 3 शुड बी इक्वल टू 5 एंड 5 शुड बी इक्वल टू 7। और उसके हिसाब से तीनों की टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी चेक कर लेते हैं कि वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, दैट इज 3, 5 एंड 7। मतलब हमने यहाँ पे 8 कंडीशंस चेक करने के लिए यहाँ पे लिख दी, राइट। अब क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा प्लेयर विनर है। तो जैसे मैंने आपको ये लॉजिक यहाँ पे समझाया था कि अगर प्लेयर 2 का चांस है और उससे पहले ये पैटर्न बन जाती है, इट मीन्स के प्लेयर 1 इज द विनर, राइट। और अगर प्लेयर 1 का चांस है और उससे पहले पैटर्न बन जाती है, देन प्लेयर 2 इज द विनर। मतलब ये लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर प्लेयर 1 है, इसका मतलब प्लेयर 2 इज द विनर। और ये लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर प्लेयर 2 है, इट मीन्स प्लेयर 1 इज द विनर, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ LBLP name, that is the name of our label control, is dot text is equal to player 1, मतलब उसके अंदर क्या लिखा है, प्लेयर 1 लिखा है, तो ऑब्वियसली विनर कौन होगा, प्लेयर 2, बिकॉज हमने यही लॉजिक यूज किया है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेयर 2 इज द विनर, राइट। टाइटल में लिखेंगे रिजल्ट, बटन हम देंगे ओके का बटन, और आइकन हम देंगे इंफॉर्मेशन का, राइट। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब एल्स पार्ट, एल्स में क्या होगा, अगर प्लेयर 2 विनर नहीं है तो प्लेयर 1 विनर होगा। अगर इसमें से कोई भी 8 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है और अगर प्लेयर 2 विनर नहीं है तो कौन विनर होगा, प्लेयर 1 विनर होगा। तो सिंपल, हम ये मैसेज बॉक्स की लाइन को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम प्लेयर 2 की जगह लिख देंगे प्लेयर 1 इज द विनर, राइट। अगेन आई रिपीट, ये हमने किस हिसाब से चेक किया, ये लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन विनर होगा। अगर लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में प्लेयर 2 है,
इट मीन्स अभी चांस प्लेयर 2 का है, तो पहले चांस किसका था? प्लेयर 1, और प्लेयर 1 ने पैटर्न बना दी है, तो विनर कौन होगा? प्लेयर 1। और अगर ये लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में प्लेयर 1 है, इट मीन्स कि अभी चांस प्लेयर 1 का है, तो इससे पहले चांस किसका था? प्लेयर 2 का था, और प्लेयर 2 ने पैटर्न बना दी है, तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया प्लेयर 2 इज द विनर, राइट। और विनर डिस्प्ले कर दिए। और अगर यूजर को फिर से ये गेम प्ले करना है, तो ऑब्वियसली हमें ये सारे जो भी ये टेक्स्ट बटन्स है, राइट, उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो हमने उसके लिए क्लियर कंट्रोल नाम का सब रूटीन बना दिया है, दैट इज ओवर हियर, वो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि विनर कौन है। लेकिन अगर ये सारे सिंबल सारे बटन्स के ऊपर क्लिक हो चुका है, राइट, सारे बटन्स के ऊपर आइदर क्रॉस या फिर जीरो आ चुका है, दैट इज सर्कल आ चुका है, और ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इट मीन्स नोबडी इज द विनर। तो ये जो इफ कंडीशन हमने विनिंग के लिए लिखी है, उसके अंदर हमें एल्स इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, राइट, ये बताने के लिए कि कोई भी विनर नहीं है। तो एल्स इफ कंडीशन में ये बताना है कि कोई भी विनर नहीं है, गेम ओवर हो चुकी है, वो हम कैसे बताएंगे? ऑब्वियसली हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये सारे टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं है। अगेन आई रिपीट, सारे सॉरी नॉट टेक्स्ट बॉक्स, सारे बटन्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं है, वो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज button 1 dot text not equal to empty, and button 2 dot text not equal to empty, and button 3 dot text, right, not equal to empty, and button 4 dot text not equal to empty, and button 5 dot text not equal to empty, and button 6 dot text not equal to empty, and button 7 dot text, right, not equal to empty, and button 8 dot text not equal to empty, and the last is and button 9 dot text नॉट इक्वल टू एम्प्टी। मतलब ये सारे बटन्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी नहीं है, इट मीन्स सारे बटन्स के ऊपर यूजर ने क्लिक कर दिया है और उसमें से कोई भी विन नहीं हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट मतलब क्या हुआ? गेम ओवर हो गई और कोई भी विन नहीं हो पाया। तो हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर देंगे, दैट इज डबल कोटेशन में हम लिखेंगे गेम ओवर, राइट, गेम ओवर लिखेंगे। उसके बाद हम मुझे न्यू लाइन में डिस्प्ले करना है नोबडी इज द विनर, तो हम यहाँ पे एम्परसेंट VBCRLF, ये तो आपको पता ही है, वो यूज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे नोबडी इज द विनर, राइट, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम टाइटल में डिस्प्ले करेंगे रिजल्ट, राइट, उसके बाद हम बटन डिस्प्ले करेंगे दैट इज ओके का बटन, एंड जो हमें सिंबल डिस्प्ले करना है दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल, राइट। मतलब मैंने यहाँ पे ये भी बोल दिया कि भैया नोबडी इज द विनर बिकॉज गेम ओवर हो चुकी है, और गेम ओवर होती है तो फिर से अगर यूजर को गेम प्ले करनी है तो ये सारे बटन्स को रिसेट करना पड़ेगा, और वो रिसेट का लॉजिक हमने ये क्लियर कंट्रोल सब रूटीन में रखा है, राइट, वो भी मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो गया कि कौन विनर है भी कि नहीं है। नाउ द लास्ट टास्क, हमें ये जानना है कि यूजर ने कौन से बटन के ऊपर क्लिक किया है। अगेन आई रिपीट, हमें ये जानना है कि यूजर ने कौन से बटन के ऊपर क्लिक किया है, बिकॉज अगर यूजर ये 5th नंबर के बटन के ऊपर क्लिक करता है तो मुझे यहाँ पे प्लेयर के हिसाब से आइदर क्रॉस मार्क डिस्प्ले करना पड़ेगा या फिर सर्कल डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि यूजर ने कौन से बटन के ऊपर क्लिक किया है, तो मैं यहाँ पे सिंबल डिस्प्ले कर पाऊंगी, राइट। सो फॉर दैट पर्पस हम ये बटन की क्लिक इवेंट पे वर्क करेंगे। सो पहले हम ये एक बटन की क्लिक इवेंट लिखते हैं, दैट इज button 1 underscore click। नाउ स्टूडेंट, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि ये सेंडर जो आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर से मुझे पता चल सकता है कि कौन से कंट्रोल ने ये इवेंट रेज की है,
अब आप सोचो यहाँ पे 9 बटन्स है, मैं 9 बटन्स की अलग अलग क्लिक इवेंट लिखने जाऊंगी तो मुझे 9 डिफरेंट क्लिक इवेंट्स इस हिसाब से लिखनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास ये भी फैसिलिटी है कि एक ही ये सब रूटीन हम सारे बटन्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, हमारे पास ये फैसिलिटी है कि ये एक सब रूटीन है, वो हम सारे बटन्स की क्लिक इवेंट के ऊपर कॉल कर सकते हैं। कैसे? हमने यहाँ पे हैंडल्स कीवर्ड पढ़ा था, राइट? हैंडल्स कीवर्ड क्या कहता है कि कौन से कंट्रोल की कौन सी इवेंट रेज हुई है। अगेन आई रिपीट, हैंडल्स कीवर्ड क्या कहता है कि कौन से कंट्रोल की कौन सी इवेंट के लिए ये सब रूटीन को यूज करना है। तो अभी तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बटन 1 डॉट क्लिक, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर एग्जांपल बटन 2 डॉट क्लिक, इन शॉर्ट ये जो सब रूटीन है दैट इज बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक, वो बटन 1 की क्लिक इवेंट के लिए भी कॉल होगा और बटन 2 की क्लिक इवेंट के लिए भी कॉल होगा। इन शॉर्ट मुझे अलग अलग सब रूटीन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, कॉमा करके मैं थर्ड बटन के लिए भी लिख दूं कि थर्ड बटन के लिए भी ये सेम सब रूटीन को कॉल करना है। फोर्थ बटन के लिए भी मैं लिख देती हूँ, राइट, कि फोर्थ बटन के लिए भी ये सेम सब रूटीन को कॉल करना है। फिफ्थ बटन के लिए भी लिख देती हूँ कि सेम सब रूटीन को कॉल करना है। सिक्स बटन के लिए भी मैं लिख देती हूँ, फिर सेवेंथ बटन की क्लिक इवेंट के लिए भी मैं लिख देती हूँ, एथ बटन की क्लिक इवेंट के लिए भी मैं लिख देती हूँ, एंड बाय द एंड नाइन्थ बटन की क्लिक इवेंट के लिए भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, राइट? कि मतलब ये 9 बटन्स की क्लिक इवेंट के लिए सेम सब रूटीन कॉल होगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हैंडल्स कीवर्ड, कि जिसके अंदर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से कंट्रोल्स की कौन सी इवेंट्स के लिए हमें ये एक ही सब रूटीन को कॉल करना है, राइट? अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, अब हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन से बटन की क्लिक इवेंट कॉल हुई है। तो वो इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? सेंडर में से मिलेगी, बिकॉज हमने देखा था कि सेंडर के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है कि कौन से बटन की कौन से कंट्रोल की इवेंट कॉल हुई है, राइट? तो हम यहाँ पे सेंडर का यूज करेंगे। कैसे? डीम btn1 एज बटन। हमने देखा था कि डॉटनेट के अंदर सारी चीजें क्लास के टर्म्स में प्रेजेंट है। इट मींस के बटन कंट्रोल का भी क्लास होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बटन कंट्रोल का एक रेफरेंस क्रिएट किया दैट इज btn1, और उसके अंदर ये जो सेंडर आर्ग्यूमेंट है वो मैंने असाइन कर दिया। इट मींस अगर बटन नंबर 5 ने ये इवेंट कॉल की है तो ये बटन 1 में किसका रेफरेंस होगा? बटन नंबर 5 का रेफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये डिस्प्ले करना है कि प्लेयर 1 है तो एक्स सिंबल के ऊपर क्लिक करना है, और प्लेयर 2 है तो वहां पे मुझे डिस्प्ले करना है 0 का सिंबल। तो अगेन मैं उसके लिए एक सब रूटीन बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दैट इज सब डिस्प्ले, बिकॉज मुझे डिस्प्ले करना है। और वो डिस्प्ले के अंदर मैं ये बटन का रेफरेंस पास कर देती हूँ। सो आई विल राइट btn1 एज बटन, राइट? वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। मतलब जो बटन के ऊपर क्लिक हुआ है उसका रेफरेंस मैंने ये डिस्प्ले नाम के सब रूटीन के अंदर पास कर दिया, राइट? तो अब मुझे ये डिस्प्ले नाम का सब रूटीन यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिस्प्ले, एंड उसके अंदर मैं पास कर देती हूँ btn1। मतलब ये बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर पहले तो सेंडर में से रेफरेंस आ जाएगा btn1 के अंदर, डिस्प्ले सब रूटीन कॉल होगा और उसके अंदर मैंने ये रेफरेंस पास कर दिया है। अब मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी है कि नहीं है। सो आई विल राइट btn1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो मुझे क्या चेक करना है कि ये लेबल में कौन सा प्लेयर का नेम लिखा है, राइट? सो मैं यहाँ पे चेक करती हूँ इफ lblp नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू प्लेयर 1, राइट? अगर प्लेयर 1 है तो मुझे btn1 डॉट टेक्स्ट मतलब बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मुझे सेट करना है क्रॉस मार्क का सिंबल, दैट इज लाइक दिस वे, राइट? एल्स अगर बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में प्लेयर 2 नहीं है, सॉरी लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में प्लेयर 2 नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है? मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है प्ले दैट इज 0 का सिंबल, दैट इज वी कैन से सर्कल का सिंबल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है।
अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे ये चेक किया कि ये बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर एम्प्टी है, मतलब बटन नंबर 5 जिसके ऊपर क्लिक हुआ है वो एम्प्टी है, तो फिर मैंने ये चेक किया कि जिसके अंदर हमने प्लेयर का नेम डिस्प्ले किया था वो लेबल में अगर प्लेयर 1 है तो ऑब्वियसली मुझे वहां पे क्रॉस मार्क का सिंबल चाहिए, तो मैंने बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्रॉस मार्क असाइन कर दिया। और अगर प्लेयर 1 नहीं है तो एल्स कंडीशन में जाएगा, तो एल्स पार्ट में हम ऑब्वियसली सर्कल का सिंबल वहां पे बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में असाइन कर देंगे। एक बार ये असाइन हो जाता है तो ऑब्वियसली हमें वहां पे विनर को चेक करना पड़ेगा, और विनर को चेक करने के लिए हमने चेक विनर सब रूटीन बनाया है विच इज ओवर हियर, राइट। ये चेक विनर सब रूटीन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। इट मींस कि अगर यूजर एक बार बटन के ऊपर क्लिक कर देता है उसके बाद हम चेक करेंगे कि विनर है कि नहीं है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे टिक-टैक-टो गेम हम बना सकते हैं, राइट। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे लॉजिक कंप्लीट होता है, डिजाइनिंग भी कंप्लीट होता है। अब हम उसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट, कि क्या हमें डिस्प्ले हो रहा है, कोई विन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी, यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, प्लेयर 1 के लिए क्रॉस मार्क है, प्लेयर 2 के लिए सर्कल है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, सी प्लेयर 1 है तो फर्स्ट टाइम प्लेयर 1 का चांस है, तो यहाँ पे क्रॉस मार्क आया, राइट। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज हम शायद भूल गए हैं कि हमें यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा ना कि एक बार प्लेयर 1 का चांस आ गया है डिस्प्ले सब रूटीन के अंदर, तो उसके बाद लेबल के अंदर क्या डिस्प्ले करना है, किसका चांस है, प्लेयर 2 का चांस है, वो तो बताना पड़ेगा ना हमें, राइट। वो हम यहाँ पे भूल गए। मतलब अगर प्लेयर 1 का चांस आ गया है, एक्स आ गया, दैट इज क्रॉस मार्क आ गया, तो हम वहां पे डिस्प्ले कर देंगे प्लेयर 2। और अगर यहाँ पे सर्कल आ गया तो अब किसका चांस होगा, प्लेयर 1 का, तो वो हमने यहाँ पे वो भी सेट कर दिया। मतलब डिस्प्ले सब रूटीन के अंदर हमने क्रॉस मार्क तो रखा अगर प्लेयर 1 है तो, और उसके बाद डिस्प्ले भी किया कि अब प्लेयर 2 का चांस है। लाइकवाइज अगर प्लेयर 2 का चांस था तो हमने सर्कल तो रखा, उसके बाद हमने ये भी डिस्प्ले किया कि अब प्लेयर 1 का चांस है, राइट। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं। फिर से देखो, प्लेयर 1 का चांस है, यहाँ पे क्रॉस मार्क रखा, देखो यहाँ पे प्लेयर 2 आ गया, ये बटन के ऊपर क्लिक किया, प्लेयर 1 आया, ये बटन के ऊपर क्लिक किया, प्लेयर 2 आया, ये बटन के ऊपर क्लिक किया, प्लेयर 1 आया, ये बटन के ऊपर क्लिक किया। सी, प्लेयर 1 के 3 क्रॉस मार्क डायगोनल में बन गए, तो हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले किया प्लेयर 1 इज द विनर, राइट। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, सी पूरा रिसेट हो गया डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से। यहाँ पे क्लिक किया, प्लेयर 2 का चांस, यहाँ पे क्लिक किया, प्लेयर 1 का चांस, यहाँ पे क्लिक किया, प्लेयर 2 का चांस, यहाँ पे क्लिक किया, प्लेयर 1 का चांस, यहाँ पे क्लिक किया, प्लेयर 2 का चांस, यहाँ पे क्लिक किया। सी, प्लेयर 2 का पैटर्न बन गया, तो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ प्लेयर 2 इज द विनर, राइट। ओके, अब फिर से देख लेते हैं, कोई विनर नहीं है, तो हम उस हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेते हैं, राइट। सी, मैंने उस हिसाब से एडजस्ट किया कि कोई भी विनर नहीं है। ओ सॉरी स्टूडेंट्स, ये प्लेयर 1 यहाँ पे विनर हो गया, बिकॉज यहाँ पे डायगोनल में वो उसकी पैटर्न बन गई। चलो फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे करते हैं, x 0 रखा तो यहाँ पे x रख देते हैं, यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे x रख देते हैं, यहाँ पे 0 रख देते हैं और यहाँ पे x। सी, गेम ओवर, नोबडी इज विनर, बिकॉज यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बनी, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे टिक-टैक-टो गेम बना सकते हैं, राइट। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो, या फिर हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं।